lecture today. It was basically today about the class who were the paid candidates, but we have decided to give this lecture, that is respiratory physiology, to all of the candidates so they can learn them as much as can. So please first let me know, am I audible to all of you? मेरी voice clear है so we can move. Yes. Okay, so I have mute you, all of you. Now my method will be that I will be that this lecture will be interactive. So whatever I ask, you have to be interactive with me in the chat box. So let's start without wasting further. That is the topics that we will cover in this lecture. In today's and tomorrow's will be these ones. Those who are going for the MRKM exam, uh, they should have the very much grip on these topics. From the respiratory physiology, you will be you will be having the 10 questions. Okay, so these topics, inshallah, we will cover in these 2 days. So before going into further, starting the lecture further, we should know about the some of the basic concepts first, because without these, you will not be able to have the grip on the further topics. So these concepts should include that what do you mean by the ventilation, what is the normal anatomy of the respiratory system, what is tracheobronchial tree, and what's the concept of 23 generations, what do you mean by the carina. So inshallah, we will discuss one by one. The first is ventilation. What do you mean by the ventilation? Actually, the term ventilation simply means that there's a movement of the air in and out of the respiratory system. आप जो air अंदर ले रहे हो और जो बाहर छोड़ रहे हो, this is simply defined as the ventilation. It is further divided into the types, which we'll discuss in the coming slides, inshallah. Afterwards, if you come upon to the respiratory system, then you come to know that when you see the respiratory systems, its structure are basically divided into the two zones. The first zone is called as the conducting zone, and the second zone is called as the respiratory zone. The conducting zone is further, you will classify it into the two airways, you can say. The one is the larger airway and the second one is the smaller airway. And your respiratory zone further of the structures we will see in a while. This respiratory zone, it's also called as the respiratory acinus, or it's also called as the respiratory unit. Okay, now why these systems, why this our respiratory system has been divided into two zones? There is a logic behind this. आखिर इन रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन दो जोन्स में क्यों डिवाइडेड किया गया है? बिकॉज एक हमारा वो जोन है जिसमें सिर्फ आपकी गैस एक्सचेंज होती है, देयर इज नो एनी, एक वो जोन है जहां से सिर्फ आप, वहां से सिर्फ आपकी जो है एयर पास होती है और वहां पे कोई किस्म की गैस एक्सचेंज नहीं होती. एक वो जोन है जहां पे आपकी पर्टिकुलरली गैस एक्सचेंज होती है. सो कंडक्टिंग जोन नाम से ही जाहिर है, यहाँ से सिर्फ हवा पास होती है. देयर इज द कंडक्शन ऑफ द गैस, देयर इज नो एनी gas exchange in this zone. Afterwards, you have the respiratory zone. In this zone, the particularly your gas exchange occurs. That's why this system, whole respiratory system, is divided into these two zones. Now question arises that conducting zone में आपके कौन से structures आएंगे और respiratory zone में आपके कौन से structures आएंगे? In the conducting zone, basically you start that from mouth, or आपका जो है then nose, pharynx, larynx, then trachea, bronchi, bronchioles, terminal bronchioles. These all will come under the zone of the conduction. Means the conducting zone will come across through these structures. While respiratory unit, it consists of your lung parenchyma. And the lung parenchyma is nothing but it is consists of your respiratory bronchiole, alveolar duct, and alveolar sac. Here I would like to add an clinical relation with this, that आप जो नमूनिया पढ़ते हो, नमूनिया में आप definition पढ़ते हो कि it is the inflammation of the lung parenchyma. So now it should be clear to you कि वो lung parenchyma आखिर है क्या. So basically it is the respiratory bronchioles, alveolar duct and alveolar sac. इन सबको मिला के आप कहते हो lung parenchyma. Now
अब ये सारी चीजें आपको मिक्स हो गई होंगी कि ट्रेकिया कहाँ से आ रहा है, ब्रोंकाई कैसे डिवाइड हो रहा है, ब्रोंक्यूल्स कहाँ बन रहे हैं. सो नाउ लेट्स मेक इट इजी. ट्रेकिया आपका आ रहा है. नाउ दिस ट्रेकिया विल बी कंसीडर्ड एज द जीरो जनरेशन. मैंने आपको बताया था कि ट्रेकिया से लेके अल्विलाई के बनने तक आपका जो ये ट्री है ये डिवाइड होता जाएगा 23 टाइम्स जब तक अल्विलाई बन नहीं जाता. सो ये जो ट्रेकिया है इसको आप कंसीडर करते हो एज द जीरो जनरेशन. Now this trachea will come and divide into the two structures which will be called as the primary bronchi. The one will be right primary bronchi and the second one will be left primary bronchi. दो लंग्स है हमारे पास तो ऑब्वियस ही बात है ट्रेकिया भी आपका दो स्ट्रक्चर्स में डिवाइड होगा और वो जो स्ट्रक्चर्स कहलाएंगे these will be called as the primary bronchi. Clear? Now these primary bronchi will enter in the lungs. अब ये जो आपके प्राइमरी ब्रोंकाई हैं ये लंग्स में एंटर होंगे. Now, when the primary bronchi enter into lungs, they will again divide into another bronchi, and these will be called as the secondary bronchi. Or secondary bronchi, they will further divide into the another bronchi that will be called as the tertiary bronchi. Our tertiary bronchi का दूसरा नाम है segmental bronchi. These all are ये books में बहुत complex चीजें लिखी हुई हैं, but I have tried my best to make it clear. Please let me know in the chat box, is it clear up to this so I can move forward? Because I don't want to just read the slides, but I want to really make you understand that you have learned something. Okay, good. Please be quick, guys. Write down the chat box. Okay, good. So afterwards, now these tertiary bronchi will divide several times. कितनी दफा divide होंगे we don't know, but they will divide several times, and उसकी आखिर का result क्या होगी? There will be the reduction in the length and the diameter. अब ये डिवाइड हो के ब्रोंक्यूल्स बनाएंगे और जब इन ब्रोंक्यूल्स का डायमीटर आपका 1 mm हो जाएगा, व्हेन द डायमीटर ऑफ दीज ब्रोंक्यूल्स विल बिकम 1 mm, now these bronchioles will be called as the terminal bronchioles. Now these bronchioles will be called as the terminal bronchioles. Now this terminal bronchioles will again divide into the respiratory bronchioles और यहां से आपका respiratory zone start होगा. So now each respiratory bronchiole will divide into a duct. हर respiratory bronchiole से आपकी एक duct निकलेगी that will be called as the alveolar duct. और alveolar duct में से आपकी एक sac निकलेगी that will be called as the alveolar sac. और वो alveolar sac जो होगी उसके अंदर clusters of bags पड़े होंगे जिसको आप नाम दोगे alveolar. जिसको आप नाम दोगे alveolar. And what is the antrum? The space in the alveolar sac, जो alveolar sac के अंदर आपकी space है, that will be called as the antrum. So this is the very good picture, that is respiratory bronchiole आपका आ रहा है, उसमें से एक duct निकल रही है that is called alveolar duct, और उसमें से ये जो पूरा structure alveolar sac और alveolar sac के अंदर ये सारे आपके alveoli पड़े हुए हैं. I hope so it is clear now. This is somewhat good picture. Yeah, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, इसको हम आगे इंशाल्लाह और फर्दर में आपको दिखाऊंगा. दिस वन इज द सेम वी हैव डिस्कस्ड. ये आपका ट्रेकिया आ रहा है, प्राइमरी ब्रोंकस, और देन आपका फिर फर्दर डिवाइड हो रहा है और आखिर का टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स. ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बन रहे हैं और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, फिर अल्वियोलर सैक, अल्वियोलस, ये सारा वी हैव डिस्कस्ड. If it is clear to this, then we can move towards कि आपने बताया था कि conducting zone आपका डिवाइड है फर्दर अपर, मतलब लार्जर एयरवे एंड स्मॉलर एयरवे. ठीक है, तो ये अपर एयरवे एंड लोअर एयरवे का यहाँ पे क्या कंसेप्ट है? बिकॉज ये भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, बिकॉज आगे अगर आप क्लिनिकल्स पे जाएंगे तो यू विल स्टडी के अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या है. सो दैट्स व्हाई आई हैव कनेक्टेड हियर this topic with this. So upper airway में you have the basically nose, oral cavity, pharynx and larynx. Here the larynx marks the transition between your upper and the lower airway, and the lower airway will again divide into the pattern of the branching systems that will be called as the tracheobronchial tree that we have already discussed on. So if I summarize all things together, then I come to know that ये जो
ट्रेकिया से लेके अल्व्यूलाई तक आपका जो सिस्टम बन रहा है, वहां तक टोटल जो जनरेशन हैं वो 23 हैं, एंड द ट्रेकिया इज यूर जीरो जनरेशन। एंड इस मॉडल को, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, ये जो डिवाइडेड है, इसको हम कहते हैं वेबल लंग्स मॉडल, इसको हम कहते हैं वेबल लंग्स मॉडल। सो द ट्रेकिया इज डिजाइनेड एज अ जीरो, एंड अल्व्यूलाई जहां पे ये खत्म हो रहा है, दिस इज डिजाइनेड एज अ लास्ट जनरेशन। टू जोन्स, कंडक्टिंग जोन, रेस्पिरेटरी जोन, ऑलरेडी डिस्कस। रेस्पिरेटरी जोन, कंडक्टिंग जोन में 16 जनरेशन आती है, रेस्पिरेटरी जोन में आपकी फर्दर लास्ट 7 जनरेशन आती हैं। ये आपकी चीज याद करने की है। बाकी रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल कौन सी जनरेशन है, ब्रोंकाई कौन सी जनरेशन है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? कंडक्टिंग जोन में it is incapable of the gas exchange, while respiratory zone it is capable of the gas exchange. Is it clear? yahan tak clear hai to I can move. Please be quick, guys. Is it clear up to this? You can write down the chat box so we can move. Okay, good. So this is the tracheobronchial tree. This is somewhat model ये दिखाया गया है कि इस तरह से ये divided है। और ये जनरेशन ट्रेकिया जीरो जनरेशन से स्टार्ट होता है अप टू एल्व्यूलाई, और एल्व्यूलाई तक जो है वो आपका 23rd जनरेशन। So if it is clear up to here, then we can move towards the next topic, which is related to with this. अगर आपने anatomy समझ ली है, इतनी anatomy जो आपके physio के लिए important है, because we will discuss the anatomy inshallah in the anatomy lectures in the thorax portion, but this was the anatomy that should be on your tips for at least to understand the physiological concepts. Afterwards you have the next topic, that is the epithelium of the respiratory system. It's also very much confusing, so we will make it easy. As we have discussed the two zones, that is conducting zone and the respiratory zone, so both of them will be having the different epithelium. The conducting zone will be having the epithelium which will be called as the respiratory epithelium, while the respiratory zone will be having another kind of the epithelium which we'll discuss in a while. First, we will discuss about the conducting zone. So in the conducting zone, you have the respiratory epithelium, and that respiratory epithelium is nothing but it is the ciliated pseudostratified columnar epithelium. Now, this here is the exception, that the pseudostratified columnar epithelium, it's not present in the three structures, that is vocal cord of the larynx, oropharynx, and laryngopharynx. These are the three structures in which this ciliated pseudostratified columnar epithelium is not present. In these areas, so what kind of epithelium will be there? There will be the stratified squamous epithelium. So this should be on your tip. This has been the question which has been asked multiple times. Afterwards, we will move towards the respiratory zone, that what kind of the epithelium is present in the respiratory zone. That is the respiratory zone. Basically, they consist of the simple non-ciliated cuboidal and squamous epithelium. And we know that in the respiratory zone, you have the alveoli. So that alveoli, that each alveoli, it is basically the pouch-like structure that is lined by the epithelium. So again, now here the next question will be asked from you is that what type of the cells are present in this respiratory epithelium, and what type of the cells are present in the alveoli. Again, I'm repeating, we have discussed the two types of the epithelium, that was the respiratory epithelium present in the conducting zone, and the epithelium that is present in the respiratory zone. Clear? Now the next question will be asked from you, that what kind of the cells are present in the respiratory epithelium, and what kind of the cells are present in the respiratory zone, particularly in the alveoli. So first we will discuss there are the four types of the cells which are present in your respiratory epithelium. That is, these are ciliated cells, goblet cells, club cells, and airway basal cells. Club cells were previously called as the cholera cells. So these are the four types of the cells that will be present in your respiratory epithelium. Now, here you should note that these goblet cells becomes fewer further down the respiratory tree as you go further on, until they are absent in the terminal bronchioles. Here, their role will be now taken by the club cells. This is a very much important point that you should know.
Afterwards, if we come upon to the alveolar epithelium, then in the alveolar epithelium, this basically consists of the cells which are called as the alveolar cells, and these alveolar cells are also called as the pneumocytes. कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि alveolar cells क्या हैं और pneumocytes क्या हैं. Both are the same things. So if I ask you the types of the alveolar cells, they broadly आपके दो तरह के cells होते हैं. दो तरह के cells होते हैं, that is the type 1 and the type 2. But for the third type of the cells भी होता है, that is called as the alveolar macrophage, या इसको आप कहते हो type 3 alveolar cell. Clear? So the alveolar cells are the three in number, that is type 1, type 2 and type 3. The type 3, it's also called as the alveolar macrophage. Am I clear up to this? Okay. Afterwards, we will move towards the very much basic concept. This, it is always asked in the MRKM primary your exam, that is what is the difference between the type 1 and these type 2 alveolar cells. The type 1, they are abundant in number, about 95% आपके जो cells होते हैं वो यही होते हैं. Type 2, there are around just 5%. Type 1 large होते हैं, type 2 small होते हैं. Type 1, they have the squamous epithelium, and type 2, they have the cuboidal epithelium. The function of the type 1 cells, it is they are responsible for the gas exchange, while the type 2, they produce a molecule which is called as a surfactant. We will discuss in a while what is the surfactant. Type 1 cells, they cannot be converted into the type 2, while the type 2 can be converted to the type 1 when needed. So अगर इतनी points ना भी याद रखें कोई मसला नहीं, but from this chart, the 2 points should be on your tips. That is, the type 1 are responsible for the gas exchange, type 2, they produce the surfactant. The type 1, they have the squamous epithelium, and the type 2 have the cuboidal epithelium. These 2 points should be on your tips. Is it clear? If it is clear, so we can move. Okay, good. थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं प्लीज. आप लोगों ने जस्ट लिखना है चैट बॉक्स में यस और नो, वाई या एंड भी लिख देंगे तब भी मुझे क्लियर हो जाएगा, बिकॉज ऐसा मेरा फायदा नहीं है लेक्चर लेने का फिर. ओके, वट एवर वी हैव स्टडीड अप टू नाउ, अगर हम उसको कोरिलेट करें विथ आवर क्लिनिकल एस्पेक्ट्स, तो हमें क्या पता चलेगा इस बेसिक में से. There is an increased production of this mucus can be seen in a disease which is a cystic fibrosis. There is a decreased movement of the cilia which is seen in the primary ciliary dyskinesia, and there is the genetic deficiency of the plant alpha-1 antitrypsin which leads to the early onset of the emphysema. That is, protease will not be inhibited and there will be the destruction of the elastin in the alveoli. This is some what little clinical which is related with our these basics that we have discussed till now. If it is clear up to here, then we can move to the now the sum of the BCQs that we from the topics that we have covered till now. Now just type your answer in the chat box. Read the scenario carefully, and what is your opinion about this question? Write down the answer in your chat box. The question is, the conducting passageway of the respiratory tract are predominantly lined by the ciliated pseudostratified columnar epithelium. This epithelium serves to moisten and protect the airway and provide a barrier to the potential pathogens, which prevents the tissue injury and infections via secretion of mucus and the action of mucociliary clearance. Which of the following area is not lined by ciliated pseudostratified columnar epithelium? I have already told you the 3 areas. Excellent. So it is the E, oropharynx. Excellent.
Next question is, there are the three main types of the alveolar cells found in the alveolar epithelium: type 1, type 2, and alveolar macrophage. What is the primary function of the type 1 pneumocytes? Excellent. So here, those candidates, those students who don't know about the difference between alveolar cells and pneumocytes, they will get confused. So no need for the confusion. I've already told you pneumocytes and the alveolar cells both are the same things. So here you all are correct. Answer is gas exchange. If it is clear up to this, then we can move to the next topic, which is related with this our previous topic. That is, we discussed the type 2 alveolar cells. They secrete the substance which is called as a surfactant. You will definitely get 1 to 2 questions from this topic in your exam. So just clear this topic here. सर्फेक्टेंट एक्चुअली आपका होता क्या है, इसको डिस्कस करने से पहले वी शुड हैव द वेरी मच क्लियर आइडिया कि आपके जो एल्वुलाई होते हैं, द एल्वुलाई दैट आर प्रेजेंट इन योर लंग्स, they normally have the surrounded thin fluid film of the fluid. आपके एल्वुलाई के सराउंडिंग नॉर्मली एक लेयर होती है फ्लूइड की, और उस लेयर ऑफ फ्लूइड की वजह से एक टेंशन, एक फोर्स क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड एज द सरफेस टेंशन. एज अ रिजल्ट, व्हाट हैपेंस, the surface water molecules are pulled tightly together by the attractive force from underneath, and this surface tension act to collapse the alveoli, and in the process it increases the pressure of the air in the alveoli. So means the surface tension tends to cause the transduction of the fluid into alveoli. If I further simplify it, that the अगर इसको मैं further simplify करूं कि first concept is what you mean by the surface tension, that is, it is the tension which is produced due to the attraction of the water molecules with each other on the surface of this thin layer of fluid. The first concept, आपके alveoli के surrounding एक thin layer of the fluid होता है. उस thin layer of fluid में उसकी वजह से एक force create होता है, that is called as the surface tension. So again I am repeating, what is the surface tension? It is the tension which is produced due to attraction of the water molecules with each other on the surface of thin layer of fluid. After that, now what this surface tension do? It causes the collapse of the alveoli. ये आपका alveoli को collapse कराता है. It will be more in the smaller alveoli, it will be large, it will be less in the large alveoli. So I can say that the small alveoli has more tendency to collapse, while large alveoli has less tendency to collapse. Is this concept is clear? What is the concept of surface tension and what is the concept? यहां तक समझ में आया सरफेस टेंशन का कंसेप्ट क्या है? आपके एल्वुलाई के सराउंडिंग यू हैव द फ्लूइड, और उसकी वजह से एक फोर्स डेवलप होती है, दैट इज द सरफेस टेंशन. और वो सरफेस टेंशन कराती क्या है? एल्वुलाई को कोलैप्स कराती है. अब नॉर्मली होता नहीं है ऐसा. फिर क्या होता है? इस सरफेस टेंशन को रिड्यूस करने के लिए कुदरत ने हमारे पास एक मॉलिक्यूल रखा है, एक सब्सटेंस रखा है, that is called as the surfactant. So I can say that the alveolar fluid contains a substance that reduces this surface tension, and this substance is called as the surfactant. Okay, so the surfactant is secreted by the type 2 alveolar cells. I have already told you. अगर ज्यादा डीप में पूछा जाए कि टाइप 2 में से भी कौन से स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं, so these are the lamellar bodies that are present in the type 2 alveolar cells that actually secrete this surfactant. Clear? If I come across through the composition of the surfactant, then it is basically made up of the phospholipids. और उसमें जो मेजर होता है, that is the dipalmitoyl phosphatidyl choline, that is DPPC or lecithin, and phosphatidyl glycerol. और भी कंपोनेंट्स होते हैं, but you should know that इसका जो मेजर कंपोनेंट है, it is DPPC or lecithin. Is it clear? यहां तक क्लियर है?
ओके गुड. सो आफ्टरवर्ड्स हमने फंक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट, अगर इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, तो पहला तो फंक्शन हमने पढ़ लिया सर्फेक्टेंट का कि इट रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन, सिंपल. उसके साथ साथ सर्फेक्टेंट आपके दूसरे फंक्शंस भी परफॉर्म करता है. कौन से? इट मेंटेन्स द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी एंड द एल्वुलर साइज. ऑब्वियस ही बात है, अगर सरफेस सर्फेक्टेंट नहीं होगा तो सरफेस टेंशन की वजह से आपका एल्वुलाई कोलैप्स हो जाएगा, तो उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं होगी. तो दैट्स व्हाई ड्यू टू द सरफेस सर्फेक्टेंट आपके एल्वुलाई की इंटीग्रिटी मेंटेन्ड होती है. सेकंड, इट इंक्रीजेस द पल्मोनरी कॉम्प्लायंस. इट इंक्रीजेस द पल्मोनरी कॉम्प्लायंस. कॉम्प्लायंस का मतलब होता है द एक्सटेंट टू व्हिच द लंग कैन एक्सपैंड, बट इट डिक्रीजेस द कंप्लायंस वर्क. इन दोनों में फर्क है, ये कंसेप्ट समझ लें. सर्फेक्टेंट पल्मोनरी कंप्लायंस को इंक्रीज करता है पर कंप्लायंस वर्क को डिक्रीज करता है. कंप्लायंस का मतलब होता है द मतलब एक्सपेंसिबिलिटी ऑफ द लंग. आपका लंग कितना एक्सपैंड हो सकता है, दिस इज कॉल्ड एज द कंप्लायंस सिंपली. कॉम्प्लायंस वर्क का मकसद होता है उस लंग को एक्सपेंड करने में आपकी जितनी एनर्जी लगी है, दैट इज कॉल्ड एज द कॉम्प्लायंस वर्क. तो सर्फेक्टेंट कंप्लायंस को इंक्रीज करता है बट कंप्लायंस वर्क को डिक्रीज करता है. उसके बाद थर्ड फंक्शन, इट प्रिवेंट्स द एटिलैक्टोसिस. फोर्थ, इट कीप्स द एल्वुलाई ड्राई. एंड फिफ्थ, इट कंट्रीब्यूट्स टू द small little percent to the innate immunity. So these are the functions that should बी क्लियर टू यू. पर अगर इतने याद ना भी कर सकते हैं, नो नीड, जस्ट ये याद कर लें कि सरफेस सर्फेक्टेंट जो है आपका कंप्लायंस को बढ़ाता है पर कंप्लायंस वर्क को डिक्रीज करता है. इज इट क्लियर टू दिस? सो वी कैन मूव. ग्रेट. सो अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे क्लिनिकल से रिलेटेड करूं, कैन यू नेम द कंडीशंस दैट इन व्हिच यू हैव द increased surface tension? Yes sir, I can name. Okay, what are those? These are pulmonary edema, pneumonia, ARDS, aspirational pneumonia. These all are the conditions in which you have the increased surface tension. अब इसके साथ थोड़ा सा और कोरिलेट करेंगे, दैट इज आरडीएस और एआरडीएस. ये क्या है? आरडीएस बेसिकली इट इज द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम. इसमें क्या होता है, आपके एल्वुलाई सारे के सारे कोलैप्स हो जाते हैं. सर्फेक्टेंट, बच्चा जो पैदा होता है उसमें सर्फेक्टेंट नहीं होता, देयर इज अ लैक ऑफ द सर्फेक्टेंट. तो ऑब्वियसली बात है, जब आपका सर्फेक्टेंट बच्चे में नहीं होगा तो सरफेस टेंशन उसकी डिक्रीज नहीं होगी और वो क्या करेगी, एल्वुलाई को कोलैप्स करा देगी. So basically in this condition the alveoli are collapsed in the neonate due to the lack of the surfactant. So that's why आपके जब alveoli collapsed होंगे, the baby will not be able to breath. So इसका ट्रीटमेंट क्या है, हम बच्चे को सर्फेक्टेंट देंगे एक्सोजीनस, बाहर से उसको सर्फेक्टेंट देंगे ताकि वो बेबी के लंग्स में जाए और सरफेस टेंशन को डिक्रीज करे और बच्चे के जो एल्वुलाई हैं वो कोलैप्स होने से बाज आ, मतलब वो कोलैप्स ना हो और वो खुल जाए. क्लियर? उसके बाद यू हैव द नेक्स्ट टर्म व्हिच इज रिलेटेड विद दिस, इट इज द एआरडीएस, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम. ये न्यूनेट का था जो हम बेबीज में देखते हैं. ये आपका अडल्ट एआरडीएस, दैट इज basically it is the lung injury which is caused by the any cause, majority is due to the sepsis or pneumonia. इसमें आपका क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होती है जो आपकी अल्टीमेटली क्या करती है, सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन को कम करा देती है. और सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन आपकी जब कम होगी तो आपकी सरफेस टेंशन बढ़ जाएगी, जो हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया. ये थोड़ा सा मैंने डिटेल में लिखा है ताकि आपको ये टॉपिक्स क्लिनिकली आपको पता हो कि हम ये जो बेसिक पढ़ रहे हैं उसको क्लिनिकल आप कैसे कोरिलेट करेंगे. इज इट क्लियर अप टू दिस? ओके गुड. If it is clear up to here, then we can move towards your next topic, which is related to with this. It is the regulation of the respiratory system. But before this, we will practice some of the questions
from the topics that we have discussed. क्वेश्चन को गौर से पढ़ें और चैट बॉक्स में अपना आंसर लिखें. A preterm infant develops the respiratory distress syndrome after birth. She is deficient in the pulmonary surfactant. Which single statement regarding pulmonary surfactant is true? A, B, C, D, or E? Please be quick, guys. देखिए, इस कोर्स का मतलब यही है कि आप अगर एक दो घंटा जो भी लेक्चर में आ रहे हैं तो उसके बाद आप कुछ यहाँ से लेके जाएं, ठीक है. वरना यूट्यूब पे और बुक्स आपके पास हजारों हैं, यू कैन रीड फ्रॉम देयर. सो यू ऑल आर सेइंग डी, इट इंक्रीजेस द पल्मोनरी कंप्लायंस. Why not B? I have seen the one option, किसी ने B लिखा है. जी, अब आप लोग ही बताएं जिन्होंने D आंसर किया है. Why not B? Excellent, Dr. Rooj. The main component is your DPCC or lecithin. Phosphatidyl glycerol, no doubt it is the component of the surfactant, but it is not the major component. Major lipid component आपका DPPC है. Clear? Okay, good, excellent. Next question is, a preterm develops the respiratory distress after birth. She is deficient in the pulmonary surfactant. Which of the following is not a function of the pulmonary surfactant? Yes, A, B, C, D, E. Excellent. So it is the C. Now here should be it should be clear to you that what is the difference between the pulmonary compliance and the compliance work. Excellent. Good. Means you have now learned the some of the thing. It's a very good thing. Okay. कुछ ना कुछ आप लोगों ने सीख लिया है. Okay. Now move towards our next topic, that is the regulation of the respiration. It's this topic, regulation of the respiration. If I truly speak, it has been a very much confusing topic since the MBBS life. Pneumotaxic center क्या है, apneustic center क्या है, जब भी पढ़ो बंदा भूल जाता है. So inshallah we will now make it easy and a conceptual way कि जितना भी क्वेश्चन टफ आए आप लोग उसको easily कर जाओ. So if I come across through the regulation of the respiration, इसका मतलब है कि आपकी रेस्पिरेशन कैसे रेगुलेट होती है, कौन सी चीजें हैं जो आपकी रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर रही होती हैं. इसका मतलब ये है. So respiration is basically regulated by the three ways. That is, one is the neural control, second is the chemical control, and third one is other methods. जो भी उसके अलावा सारे methods हैं न्यूरल और केमिकल के अलावा, these will come under the category of the other methods. So first we will discuss neural control and then we will discuss chemical control, and then that will be followed by the BCQ practice. Now first we will discuss about neural control. इसका मतलब है कि आपका जो ब्रेन है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को कैसे कंट्रोल कर रहा है. Why are the two controls, that is voluntary and involuntary. आप कुछ टाइम तक अपनी ब्रेथ को होल्ड कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज अ वॉलंटरी कंट्रोल. उसके बाद आप अपनी ब्रेथ को होल्ड नहीं कर सकते, दैट इज इनवॉलंटरी कंट्रोल. So the voluntary control means it is the regulated by the cerebral cortex, and the cerebral cortex से भी आपका कैसे regulate होता है, with the help of the corticospinal tract. This question has been asked multiple times in your MRKM primary. So the should be clear to you that voluntary control, it's basically regulated by the cerebral cortex. और cerebral cortex से भी आपका कैसे regulate होगा, by the help of the corticospinal tract. And this voluntary control occur during talking, singing, and breath holding.
इन सारी चीजों में आप अपनी वॉलेंट्री कंट्रोल को एक्ट में लाते हो. सो दिस इज सिंपल. उसके बाद जो एक्चुअल थिंग इज हाउ इनवॉलेंट्री कंट्रोल इज अचीव्ड. आपका ब्रेन इसको कैसे कंट्रोल कर रहा होता है. सो इनवॉलेंट्री कंट्रोल इज बेसिकली अचीव थ्रू द centers which are called as the respiratory centers. Now question rises here, Dr. Saab, रेस्पिरेटरी सेंटर का क्या मतलब है. रेस्पिरेटरी सेंटर्स आर नथिंग बट दीज आर द ग्रुप ऑफ द न्यूरॉन्स जो आपके ब्रेन में पड़े हुए हैं. सो दीज आर द ग्रुप ऑफ द न्यूरॉन्स व्हिच आर लोकेटेड इनटू द रेटिकुलर सिस्टम ऑफ द ब्रेन स्टेम. आपके ब्रेन स्टेम में एक स्ट्रक्चर होता है जहां पे दैट इज कॉल्ड एज अ रेटिकुलर फॉर्मेशन. वहां पे एक ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स हैं जो इस रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. दीज ग्रुप ऑफ द न्यूरॉन्स आर कॉल्ड एज द respiratory center. So these, how will you divide these respiratory centers? These are divided again into two groups. One is the medullary center and second is the pontine center. मतलब एक वो सेंटर्स जो आपके मेडुला में मौजूद हैं, दूसरे वो सेंटर्स जो आपके पोन्स में मौजूद हैं. The medullary centers are again you are divided into the dorsal respiratory group and the ventral respiratory group, that is DRG and VRG. Pontine respiratory centers are again of the two types, that is the pneumotaxic center and the apneustic center. Pneumotaxic center आपका अपर पोन्स पे होता है और apneustic center आपका लोअर पोन्स में होता है. इसको याद करने का तरीका ये है, PA निमोनिक याद कर लें, PA फॉर द एग्जाम पर्पस. निमोटेक्सिक सेंटर पहले आता है मतलब अपर पोन्स में होगा, उसके बाद एप्नोस्टिक सेंटर है वो लोअर पोन्स में आएगा मतलब निमोटेक्सिक के बाद आएगा. अब इफ इट इज क्लियर अप टू दिस, अब हम पढ़ेंगे कि इन सेंटर्स से रेस्पिरेशन कैसे रेगुलेट होती है. तो दैट इज कैन यू प्लीज टेल द डिफरेंस बिटवीन दीज रेस्पिरेटरी सेंटर्स के मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर्स में क्या फर्क है और पोन्टाइन में क्या फर्क है. दैट इज मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर आपका it creates the rhythmic innervation of the respiratory muscles and it is influenced by the various respiratory stimuli, while the pontine centers they just modify the activity of the medullary centers. Is it clear? So I can say that आपकी जो मेडुला है that is the primary center for the mediation of the respiration. आपका जो असल रेगुलेशन, आपकी जो रेस्पिरेशन की जो रिदम जनरेट होगी वो मेडुला से होगी, while जो आपके पोन्टाइन सेंटर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेडुला के सेंटर्स की एक्टिविटी को मॉडिफाई करेंगे. सिंपल. सो अब सवाल ये है दैट इज प्लीज टेल मी डॉक्टर साहब ये न्यूरल सिस्टम कैसे वर्क करेगा. सो इसको स्टोरी की तरह पढ़े, इंशाल्लाह इट विल बी ऑन योर टिप्स. सो स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम द मेडुलरी सेंटर्स बिकॉज आपका मैंने बताया कि मेडुलरी सेंटर ही वो है जहां से आपकी रेस्पिरेशन का रिदम जनरेट होगा. सो मेडुलरी सेंटर्स में डीआरजी और वीआरजी है, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप एंड वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप. So dorsal respiratory group, it is located in the nucleus solitary tract, while ventral respiratory group, it is located into the nucleus ambiguous. Dorsal respiratory group is normally involved in inspiration, while ventral respiratory group ये normally inactive होता है, इसका normal respiration में कोई काम नहीं होता. Clear? ये अगर points clear हैं तो अब हम इसको easily कर पाएंगे. नॉर्मली आपकी जो रेस्पिरेशन है उसमें जो सिग्नल्स ऑफ द इंस्पायरेशन के हैं वो डीआरजी की तरफ आते हैं. नॉर्मल इंस्पायरेशन जब आप करते हो तो उसमें जो सिग्नल्स हैं इंस्पायरेशन के वो डीआरजी की तरफ आते हैं विद द हेल्प ऑफ द 9th एंड 10th क्रेनियल नर्व. 9th क्रेनियल नर्व आपकी इंफॉर्मेशन लेके जाती है पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स से, और जो 10th क्रेनियल नर्व है वो आपकी इंफॉर्मेशन लेके जाती है फ्रॉम द पेरिफेरल as well as the mechanoreceptors. तो अब ये इंफॉर्मेशन सारी आ गई डीआरजी के पास. अब डीआरजी क्या करेगा. नाउ डीआरजी विल क्रिएट, इट इज अ पेसमेकर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. जैसे हमें पता है कि ऐसे नोड आपका कार्डियोवास्कुलर में पेसमेकर होता है, तो इसी तरह आपका आज के बाद याद रख लें कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो पेसमेकर है रेस्पिरेशन का वो डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है, दैट इज डीआरजी. इसका क्या मतलब है. इट मींस इट विल क्रिएट द रिदम ऑफ द रेस्पिरेशन. और रिदम ऑफ रेस्पिरेशन का क्या मतलब है
कि पहले इंस्पायरेशन होगी उसके बाद एक्सपायरेशन होगी. The rhythm of respiration simply means the first inspiration will occur and then the inspiration will occur, then expiration will occur. पहले आप सांस लेंगे उसके बाद एक्सपायरेशन होगी. सिंपल. So now DRG basically this controls the timing of the respiratory cycle. इसका क्या मतलब है कि पहले इंस्पायरेशन होगी कितने टाइम के लिए, 1 सेकंड के लिए आपकी होगी, उसके बाद फिर एक्सपायरेशन होगी, दैट इज फॉर द 2 सेकंड्स. अगर इसको ना भी याद रखिए कोई मसला नहीं, बट दिस क्लियर टू यू कि सिग्नल्स इंस्पायरेशन के डीआरजी की तरफ रिदम ऑफ द इंस्पायरेशन क्रिएट कर रहा है. रिदम ऑफ द इंस्पायरेशन का मतलब है कि पहले इंस्पायरेशन होगी फिर एक्सपायरेशन होगी. इंस्पायरेशन 1 सेकंड के लिए होगी, एक्सपायरेशन 2 सेकंड्स के लिए होगी. सो दिस बेसिकली टाइमिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी साइकिल को कंट्रोल करता है आपका डीआरजी. टू दिस गाइस, यहां तक ये क्लियर है? ओके गुड. नाउ दिस डीआरजी ने आपका रिदम क्रिएट कर लिया. अब डीआरजी से आपका आउटपुट जाएगा. सो नाउ द आउटपुट ऑफ दिस डीआरजी विल गो टूवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड के सर्वाइकल एरिया में आएगा और वहां से कौन से एरियाज में आएगा, दैट इज C3, C4 एंड C5. इन एरियाज में आएगा. यहां से एक नर्व निकालेगा दैट विल बी कॉल्ड एज द फ्रेनिक नर्व. एंड वो फ्रेनिक नर्व जो है आपकी जाके डायाफ्राम को सप्लाई करेगी, बिकॉज द मेजर मसल ऑफ द इंस्पायरेशन इज डायाफ्राम. वो इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के कौन कौन से मसल्स होते हैं. तो C3, C4, C5 यहां से एक नर्व निकलेगी. डीआरजी ने क्या किया, सर्वाइकल एरिया ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आया. उस वहां पे C3, C4, C5 को ऑर्डर दिया कि आप एक नर्व निकालो, जिसका नाम उन्होंने दे दिया साइंटिस्टों ने फ्रेनिक नर्व. और वो नर्व मेजर मसल ऑफ द इंस्पायरेशन की तरफ गई, जिसका नाम है डायाफ्राम. डायाफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करवाया, एज अ रिजल्ट आपकी इंस्पायरेशन हो गई. सो इन दिस वे द इंस्पायरेशन इज अचीव. यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में किया जाता है कि फ्रेनिक नर्व में C3, C4 एंड C5, इसमें मेजर कंपोनेंट आपका किस का होता है फॉर द फ्रेनिक नर्व. दिस इज योर टास्क. ये थोड़ा सा खुद पढ़िएगा एंड देन इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन द ग्रुप. सो ये था इंस्पायरेशन कैसे आपकी अचीव होती है. नाउ एक्सपायरेशन कैसे अचीव होती है, वी विल डिस्कस दैट हाउ डॉक्टर साहब एक्सपायरेशन विल बी कंट्रोल. एक्सपायरेशन के लिए वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ द सेपरेट सेंटर. जैसे हमें डीआरजी की जरूरत थी, 9th एंड 10th क्रेनियल नर्व की जरूरत थी फॉर द इंस्पायरेशन. एक्सपायरेशन बेचारा बिल्कुल सिंपल है. फॉर द एक्सपायरेशन यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ द सेपरेट सेंटर टू कंट्रोल दिस. व्हाई? बिकॉज द एक्सपायरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस and the inspiration is active process. So for the expiration आपने क्या करना है, जो डीआरजी एक्टिव है, जो इंस्पायरेशन करा रहा है, उसको स्टॉप करना है. सिंपल. एंड दिस विल बी achieved by and this will occur by the signals from pneumotaxic center. और ये कैसे होगा डीआरजी को स्टॉप कराना? by the help of the pneumotaxic center. Is it clear? यहाँ तक क्लियर है गाइस, so I can move. Good. So आफ्टरवर्ड्स डीआरजी आपने जब पढ़ लिया तो वीआरजी, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ये भी मेडुला में पड़ा हुआ है. तो वीआरजी इज प्रेजेंट इन द मेडुला, बट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द नॉर्मल रेस्पिरेशन इसका कोई काम नहीं होता. इट्स नॉर्मली कैप्ट इनहैबिटेड. Why? Because expiration it is the passive process. आपकी passive process होती है और वो कैसे होती है मैंने ऑलरेडी बता दिया है. So VRG कब एक्टिवेट होगा? It is activated when the expiration becomes active process, और वो होता है during exercise या कोई भी आप फोर्स एक्टिविटी करते हो जिसमें एक्सपायरेशन आपकी पैसिव प्रोसेस एक्टिव पैसिव से एक्टिव हो जाती है. सो इन दैट केस VRG विल बी एक्टिवेटेड. So till now we have discussed these concepts. Now we will discuss about pneumotaxic center.
मेडुलरी सेंटर आपको मैंने डिस्कस करा लिए। अब आ जाए पोन्टाइन सेंटर। मैंने पहले ही बताया था कि पोन्टाइन सेंटर का काम है जस्ट टू मॉडिफाई द एक्टिविटी ऑफ द मेडुलरी सेंटर। सिंपल। रिदम ऑफ द रेस्पिरेशन एक्चुअली आपका मेडुला से बनेगा, पर जो पोन्टाइन सेंटर्स हैं उसके लिए निमोनिक बताया पी ए, अपर पोन्स में निमोटैक्सिक और लोअर पोन्स में एपनॉस्टिक सेंटर। इनका काम है मेडुलरी एक्टिविटी, मतलब मेडुला में जो सेंटर्स है उनकी एक्टिविटी को मॉडिफाई करना। क्लियर? सो फर्स्ट इज निमोटैक्सिक सेंटर, अपर पोन्स में है, बता दिया। इसका क्या फंक्शन है? इट गिव्स द सिग्नल्स टू द डीआरजी टू स्टॉप द पीरियड ऑफ इंस्पायरेशन। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपका नॉर्मली डीआरजी को आप इनहेबिट करवाएंगे, आपकी एक्सपायरेशन हो जाएगी। तो वो जो डीआरजी को इनहेबिशन करवाएगा वो कैसे कौन करवाएगा? निमोटैक्सिक सेंटर। इज इट क्लियर? यहां तक ये क्लियर है गाइस? ये कंसेप्ट बुक्स में बहुत कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, बट आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि मैं इसको कंसेप्चुअली स्टोरी की तरह ले चलूं, बिकॉज इसके क्वेश्चंस 3 से 4 आपको लाजमी आएंगे। एंड इफ इट इज नॉट क्लियर, आप इसके क्वेश्चंस कभी भी नहीं कर पाएंगे। मैं अभी थोड़ी देर में आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा क्वेश्चंस की, इंशाल्लाह उसमें आपको पता चल जाएगा। यहां तक क्लियर है गाइस? ओके, गुड। आफ्टरवर्ड्स यू हैव द पोन्टाइन सेंटर्स। पोन्टाइन सेंटर का क्या मतलब है? दैट इज द, मतलब उसमें जो निमोटॉक्सिक सेंटर है वो तो आपने बता दिया कि इट इनहेबिट द एक्सेसिव इंस्पायरेशन बाय गिविंग द इनहेबिटरी सिग्नल्स टू द डीआरजी। उसके बाद एपन्योस्टिक सेंटर का क्या मतलब है? एपन्योस्टिक सेंटर स्टिमुलेट द इंस्पायरेशन बाय गिविंग द स्टिमुलेटरी सिग्नल्स टू द डीआरजी, और वो होता है आपका मेनली एक्सरसाइजेज में। तो इसका मतलब ये है कि आपका निमोटैक्सिक सेंटर हो या एपनियोस्टिक सेंटर हो, दोनों में से सिग्नल आपके डीआरजी की तरफ आएंगे। पर जो निमोटैक्सिक होगा उसके इनहेबिटरी सिग्नल्स होंगे, और जो एपनियोस्टिक सेंटर होगा उसके स्टिमुलेटरी सिग्नल्स होंगे। अब एक कंसेप्ट याद कर लें, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। दैट नॉर्मली निमोटैक्सिक सेंटर इज डोमिनेंट ओवर एपनियोस्टिक सेंटर। आपका नॉर्मली निमोटैक्सिक सेंटर एपनॉस्टिक सेंटर के ऊपर डोमिनेंट होता है। सो दैट्स व्हाई आपके निमोटैक्सिक सेंटर से इनहेबिटरी सिग्नल्स जाते हैं डीआरजी की तरफ, और इंस्पायरेशन इस तरह से आपकी इनहेबिट हो जाती है। इफ इट इज क्लियर अप टू दिस, इसको अब हम थोड़ा सा क्लिनिकली कोरिलेट करेंगे। The person who have the spinal cord injuries at about C4 level cannot breathe independently. Why? अच्छा, मैं यहाँ बताता चलूं कि आपको जो मैंने फ्रेनिक नर्व का बताया था C3, C4 और C5, उसमें जो मेजर आपका होता है वो आपका C4 का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर C4 की लेवल पे आपकी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाए तो वो पर्सन इंडिपेंडेंटली ब्रेथ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपकी फ्रेनिक नर्व जनरेट ही नहीं होगी वहां से। क्लियर? सो इफ इट इज क्लियर अप टू दिस, देन वी कैन मूव टू द क्वेश्चंस। यहां तक ये क्लियर है गाइस? सो आई कैन मूव। अब मैं क्वेश्चंस दिखाऊंगा, गौर से पढ़ना है उन क्वेश्चंस को, एंड यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन इनटू द चैट बॉक्स। आपने आंसर लिखना है। द फर्स्ट क्वेश्चन, basic rhythm of the respiration is generated by neurons located in medulla. What limits the duration of the inspiration and increases the respiratory rate? गौर से पढ़िएगा, जल्दी नहीं कीजिएगा।
सो मेजॉरिटी हैव द आंसर डी, इट्स करेक्ट। ऑब्वियसली बात है, इस क्वेश्चन को देखें, ये क्वेश्चन आसान नहीं है। इट इज फ्रॉम योर गाइटन बीसीक्यूज, और आपको पता है गाइटन के बीसीक्यूज दे आर बेसिकली यूएसएमएल टेस्टेड क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें सिंपल अगर आप कंसेप्ट को देखोगे, व्हाट लिमिट्स द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, लिमिट द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन मतलब इंस्पायरेशन को नॉर्मली इनहिबिट कौन करा रहा है? द सिग्नल्स फ्रॉम द नीमोटैक्सिक सेंटर। ऑब्वियसली बात है, नीमोटैक्सिक सेंटर से इनहिबिटरी सिग्नल्स आएंगे डीआरजी की तरफ, तब जाके वो इनहिबिट होगा ना। एंड इंक्रीजेस द रेस्पिरेटरी रेट। ऑब्वियसली बात है, जब आप इंस्पायरेशन का टाइम पीरियड कम करोगे तो एक्सपायरेशन होगी, फिर इंस्पायरेशन होगी, तो रेस्पिरेटरी रेट आपका इंक्रीज होगा। सो दिस इज द डी आंसर। नेक्स्ट वन इज यूर दिस, सुकून से पढ़ें और आंसर दें। दिस इज आल्सो फ्रॉम यूर यूएसएमएल टेस्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम गाइटन। एक्सेलेंट, इट इज द ए। ओके, क्वेश्चन को देखें। स्ट्रोक हुआ है पेशेंट को, जिसने डिस्ट्रॉय किया है रेस्पिरेटरी एरिया ऑफ द मेडुला। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, रेस्पिरेटरी एरिया ऑफ द मेडुला मतलब वो वहां से रिदम ऑफ रेस्पिरेशन जनरेट ही नहीं होगी। जब रिदम ऑफ रेस्पिरेशन जनरेट ही नहीं होगी तो आपकी ब्रीथ क्या हो जाएगी? होल्ड हो जाएगी। सो हियर द आंसर शुड बी इमीडिएट सिजेशन। क्लियर? अब क्वेश्चन देखिए कितना वो है, बट इफ यू नो द कंसेप्ट, कैसे इजीली आप कर गए। क्लियर हो गया यहां तक? ओके गुड। अब यहाँ पे एक और चीज आई विल टेल यू दैट के आपने एक ब्रीदिंग पैटर्न सुना होगा, देयर आर द मल्टीपल ब्रीदिंग पैटर्न्स, बट यहाँ पे आई विल से के एपनॉस्टिक ब्रीदिंग पैटर्न। एपनॉस्टिक ब्रीदिंग पैटर्न का क्या मतलब है? इसका मतलब है इट इज द टाइप ऑफ द ब्रीदिंग पैटर्न व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रोलॉन्ग्ड इंस्पायरेशन फॉलोड बाय द शॉर्ट पीरियड ऑफ द एक्सपायरेशन। अब मुझे थोड़ा सा आप लोग सोच के बताएं, जो कंसेप्ट मैंने दिया है कि प्रोलॉन्ग्ड इंस्पायरेशन कैसे होगी, कौन सा सेंटर डैमेज हो जाएगा जिसकी वजह से प्रोलॉन्ग इंस्पायरेशन होगी? निमोटैक्सिक या एपनॉस्टिक? एक्सेलेंट, निमोटैक्सिक। जब आपका निमोटैक्सिक सेंटर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब अपर पोन्स में कोई लीजन हो जाएगी, इसको मैं और सिंप्लीफाई करूं तो फिर क्या होगा? निमोटैक्सिक सेंटर डिस्ट्रॉय हो गया तो एपन्योस्टिक सेंटर हावी हो गया। तो एपन्योस्टिक सेंटर क्या करता है? इनहैब इट गिव्स द स्टिमुलेटरी सिग्नल्स टू द डीआरजी। तो उसकी वजह से क्या होता है? देयर इज अ प्रोलॉन्ग इंस्पायरेशन व्हिच इज फॉलोड बाय द शॉर्ट पीरियड ऑफ द एक्सपायरेशन। क्लियर? तो अब ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि किस तरह से। अब यही मेरा मकसद था कि आपका ये बेसिक लेक्चर को मैं क्लिनिकल से कोरिलेट कर लूं। तो इंशाल्लाह आई आई होप सो अब ये कभी नहीं भूलेंगे आप। नहीं, ये कुछ चीजें क्लिनिकल हैं, स्क्रीन इसमें शो वो स्लाइड्स में नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू हियर। इज इट क्लियर अप टू दिस गाइस? सो हम आगे चलें, जल्दी जल्दी बताएं। यहाँ तक क्लियर है सबको? एक्सेलेंट।
सो डॉक्टर साहब आपने बताया न्यूरल रेगुलेशन, अब थोड़ा सा आ जाए केमिकल रेगुलेशन पे। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर न्यूरल समझ में आ गई है ना, केमिकल बहुत आसान है, बट इंशाल्लाह वी विल मेक इट मोर इजी। केमिकल रेगुलेशन का मतलब है कि डॉक्टर साहब मींस द टाइप ऑफ द रेगुलेशन दैट इज ऑपरेटेड थ्रू कीमोरिसेप्टर्स। सिंपल। सर कीमोरिसेप्टर का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय द कीमोरिसेप्टर्स? डॉक्टर साहब कीमोरिसेप्टर्स आर नथिंग बट दे आर द सेंसरी नर्व एंडिंग्स। सिंपल। ये वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द ब्लड में अगर कोई चेंज आ जाए उसको रेस्पॉन्स करते हैं, उसको डिटेक्ट करते हैं। दीज आर द कीमोरिसेप्टर्स। सो आई कैन से दैट द कीमोरिसेप्टर्स आर द स्ट्रक्चर्स which give the response to changes in the chemical constituent of blood. सर अब केमिकल कांस्टेंट ऑफ ब्लड क्या है? नो प्रॉब्लम, हम पढ़ते हैं अभी। थोड़ी देर में बताता हूं कि केमिकल कांस्टेंट ऑफ ब्लड क्या है। इसको थोड़ा सा आगे चलने से पहले यू शुड नो द सम ऑफ द बेसिक कि आपका जो ब्रेन है यहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर होता है। यू ऑल नो दैट, ठीक है? और ब्रेन में सीएसएफ मौजूद होता है, तो मतलब ब्रेन में दो फ्लूइड्स हो गए, एक है सीएसएफ, दूसरा है ब्लड। नाउ द सीएसएफ इन द ब्रेन इट इज separate, it is separated from the blood, it is not related but it is separated, ये typing mistake है। It is separated from the blood by a barrier which is called as the blood brain barrier. Now ये जो barrier है, this is impermeable to the molecules like hydrogen ions and HCO3 ions, but this is permeable to the carbon dioxide gas. Carbon dioxide gas आपकी एक वो गैस है जो इस permeability को easily क्रॉस कर जाएगी। ये कुछ कंसेप्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द फर्दर कंसेप्ट्स। तो अब सवाल है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द कीमोरिसेप्टर्स? टू टाइप्स, एक सेंट्रल, दूसरा पेरिफेरल। सेंट्रल की लोकेशन क्या है? सेंट्रल नाम से जाहिर है जो ब्रेन की तरफ होंगे, मींस दीज आर द टाइप ऑफ द रिसेप्टर्स दैट आर प्रेजेंट इन द मेडुला नियर रेस्पिरेटरी सेंटर। एंड द पेरिफेरल सेंटर्स आपकी लोकेशन कहाँ है? द पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स आर कॉल्ड एज द कैरोटिड बॉडीज एंड एओटिक बॉडीज। कैरोटिड बॉडीज जो होती है वो ऑन द फॉक ऑफ द कॉमन कैरोटिड आर्टरीज की तरफ होती है, और जो एओटिक बॉडीज होती है वो आर्च ऑफ एओटा की तरफ होती है। सो द पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स आर कैरोटिड बॉडीज एंड एओटिक बॉडीज। हियर आई वुड लाइक टू क्लियर अ मिसकंसेप्शन दैट आप प्लीज इन टर्म्स को मिक्स नहीं कीजिएगा। द टर्म कैरोटिड एंड एओटिक आर्च बैरोरिसेप्टर्स, वो भी ये सेम लोकेशंस पे होते हैं, पर वो अलग चीज है। कैरोटिड एंड एओटिक आर्च बैरोरिसेप्टर्स, दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर चेंजेस इन द ब्लड प्रेशर। वो ब्लड प्रेशर में जो चेंजेस होती है वो इंशाल्लाह हम सीवीएस में और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, पर वो एक अलग चीज है। दीज आर द कैरोटिड एंड एओटिक बॉडीज जो आपकी पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स हैं। तो प्लीज एग्जाम में ये आप लोगों ने मिक्स नहीं करना। क्लियर? दीज आर्च बैरोरिसेप्टर्स दे गिव द रेस्पॉन्स टू द प्रेशर चेंजेस, और ये जो कीमोरिसेप्टर्स हैं पेरिफेरल, इनका नाम है कैरोटिड बॉडीज एंड एओटिक बॉडीज। तो प्लीज खुदा के लिए इनको आपने मिक्स नहीं करना है। अब सवाल ये है व्हाट इज द गोल ऑफ दिस सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स? मैंने आपको पहले ही बताया था कि बैरियर, जो ब्लड ब्रेन बैरियर है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इजीली क्रॉस कर जाती है। हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी थोड़ी सी भी कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल अगर बढ़ जाए उसको बर्दाश्त नहीं करती। अगर आपने क्लिनिकल साइड पे आप काम करते हैं, आपने एबीडीज देखी होगी, उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 35 से लेके 45 mm ऑफ द मर्करी। वो अगर 60 पे भी चली जाए, 50 पे भी चली जाए, बंदा अपनी कॉन्शियसनेस लेवल को खो देता है। मतलब आप क्यों? क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड उस बैरियर को क्रॉस कर गई है, और जिसकी वजह से वो क्या है, पेशेंट आपकी कॉन्शियस लेवल जो है वो लॉस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी इट इज वेरी मच सेंसिटिव टू द लेवल ऑफ द पीसीओ2। थोड़ी सी भी बढ़ेगी हमारी बॉडी उसको डिटेक्ट करेगी। तो द गोल ऑफ दिस सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स इज टू कीप द आर्टीरियल पीसीओ2 इन द नॉर्मल रेंज। तो सवाल ये है कि सर फिर पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर का क्या काम है, वो क्यों बताया है? पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स भी कार्बन डाइऑक्साइड की रेगुलेशन में इन्वॉल्व हैं, पर उतने नहीं है। तो सवाल सर फिर वो हमारी बॉडी में क्यों है? सर पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स का मेजर काम हाइपोक्सिया में है। तो अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स आपकी कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ेगी उसको रेगुलेट करेंगे।
peripheral chemoreceptors, they are majority related with the hypoxia. बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी, उसको रेस्पॉन्स डिटेक्ट करेगा peripheral chemoreceptors. Am I clear? ये कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर है तो फिर आगे चलो. Please write down the chat box so we can move. Good. अब सवाल ये है कि name the some changes in the name these changes in the chemical constituent of the blood to which the chemoreceptors आपकी जो है वो रेस्पॉन्स करे. तो वो हाइपोक्सिया, हाइपरकेपनिया एंड इंक्रीज्ड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. हाइपोक्सिया के लिए मैंने आपको बता दिया, पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर्स मेजॉरिटी रिस्पांसिबल होते हैं, वोन को रिस्पॉन्स करते हैं. सेंट्रल कीमोरेसेप्टर्स हाइपरकेपनिया. इंक्रीज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन द ब्लड, ये भी एक केमिकल कांस्टेंट है जिसको आपका सेंट्रल कीमोरेसेप्टर डिटेक्ट करता है. तो अब सवाल ये है कि इसको थोड़ा सा अब हमने समझना है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल अगर बढ़ती है तो सेंट्रल कीमोरेसेप्टर उसको रेस्पॉन्स कैसे करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है. पहले ये याद रखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड आपकी लिपिड सॉल्युबल है, ऑक्सीजन लिपिड सॉल्युबल नहीं है. जो आपका सेंट्रल कीमोरेसेप्टर्स हैं उनके लिए जो मेजर स्टिमुलेंट है वो है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. ये याद रखें. इसका मतलब है कि जो मेरा सेंट्रल कीमोरेसेप्टर है वो तब स्टिमुलेट होगा जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी. अब ये मैंने आपको शुरू में ही बताया कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन तो आपकी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती. तो फिर सवाल ये है कि सर कीमोरेसेप्टर स्टिमुलेट कैसे होंगे. मैंने बताया था कि मेजर स्टिमुलेंट आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल बढ़ गई. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल बढ़ गई, उसने ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके सेंट्रल कीमोरेसेप्टर की तरफ गई. उसने बोला कि भाई बॉडी में मैं बहुत बढ़ रही हूँ, प्लीज कुछ करो, मुझे बाहर निकालो बॉडी से. सेंट्रल कीमोरेसेप्टर ने जवाब दिया कि सर आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर यू. मेरा स्टिमुलेंट तुम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो, पर मेरा स्टिमुलेंट हाइड्रोजन आयन है. तो इसका मतलब हाइड्रोजन आयन अगर बढ़ेगा तो सेंट्रल कीमोरेसेप्टर एक्टिवेट होगा और अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा. पर यहाँ पे तो कार्बन डाइऑक्साइड आ गई है. सो मींस अंडर नॉर्मल कंडीशंस आपको अब करना क्या है कि इस हाइड्रोजन आयन को बनाना है. हाइड्रोजन आयन कैसे बनेंगे, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके आई है, इट विल कंबाइन विद H2O and they will form the H2CO3. This H2CO3 will immediately dissociate into the HCO3 and hydrogen ions. और वो जो हाइड्रोजन आयंस आपके बनेंगे वो सेंट्रल कीमोरेसेप्टर को जाके एक्टिवेट करेंगे. सो इन दिस वे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल बढ़ गई और सेंट्रल कीमोरेसेप्टर एक्टिवेट हो गया वाया द हेल्प ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस. ये मैकेनिज्म अगर क्लियर है तो फिर मैं आगे चलूं. यहां तक ये चीज क्लियर है. ये बुक्स में बहुत कॉम्प्लेक्स लिखी हुई है. आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि मैं इसको जितना क्लियर कर सकूं मैंने किया है. गुड. नाउ दिस इंक्रीज्ड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन विल स्टिमुलेट द सेंट्रल कीमो सेंसिटिव एरिया. अब सेंट्रल कीमो रिसेप्टर एक्टिवेट हो गए, वो क्या करेंगे, उनमें से सिग्नल निकलेंगे, वो जाएंगे डोर्सल इंस्पायरेटरी ग्रुप के पास. Where they will go? They will go to the DRG group. और DRG ग्रुप मैंने पहले ही बताया उसका काम क्या है, वो स्टिमुलेट करेगा इंस्पायरेशन को. और जब इंस्पायरेशन आपकी स्टिमुलेट होगी तो रेट ऑफ इंस्पायरेशन इंक्रीज होगा और बंदा क्या करेगा, इस तरह से बड़ा बड़ा सांस लेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी सारी की सारी वॉश आउट हो जाएगी और वो आपकी लेवल जो है ब्लड में नॉर्मल हो जाएगी. सो एक्सेलेंट, हाइपर वेंटिलेट करेगा पेशेंट. क्लियर. सो आई कैन से दैट मैंने जितना ये सर कुछ पढ़ा है तो आई कैन से दैट द सेंट्रल chemoreceptors can respond to the increased hydrogen ion level in the CSF. ब्लड में जितनी मर्जी आप हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ा दें, वो वहां से ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेगी. तो कार्बन डाइऑक्साइड जो लेवल क्रॉस करके आई है वो अंदर आके सीएसएफ में पानी के साथ कंबाइन होगी और हाइड्रोजन आयंस बनाएगा. तो मतलब सेंट्रल कीमोरेसेप्टर विल गिव रेस्पॉन्स टू द इंक्रीज्ड हाइड्रोजन आयंस इन द सीएसएफ. सेकंड, इंक्रीज्ड CO2 लेवल इन द ब्लड. थर्ड, लैक ऑफ ऑक्सीजन, इसको छोड़ दें, लैक ऑफ ऑक्सीजन का सेंट्रल पे इतना कोई रोल नहीं होता, उसमें पेरिफेरल आएगा.
तो ये दो पॉइंट्स आपको क्लियरली याद होनी चाहिए कि अगर मैं बोलूं कि सेंट्रल कीमोरिसेप्टर विल गिव रेस्पॉन्स टू द इंक्रीज्ड हाइड्रोजनाइन लेवल इन द ब्लड, तो ये स्टेटमेंट सही होगी गलत होगी? इट ऑब्वियसली गलत होगी, बिकॉज इट विल गिव रेस्पॉन्स टू द increased hydrogenines in the CSF. Clear? But central chemoreceptors will give response to the increased level of the CO2 in the blood. और वो कैसे करेगा? Via the formation of the hydrogenines. तो ये स्टेटमेंट देखने में इजी है, बट इसके पीछे बहुत बड़ा कंसेप्ट है जो मैंने बता दिया आपको। यहां तक क्लियर है? तो आई कैन मूव। गुड। आफ्टरवर्ड्स वी हैव द पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स। मैंने आपको पहले ही बताया कि मेजर स्टिमुलेंट फॉर द पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर आपका हाइपोक्सिया है। बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल बढ़ी, बॉडी ने उसको कैसे बाहर निकाला हमने पढ़ लिया। बॉडी में ऑक्सीजन की लेवल कम हुई, उसके लिए पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर एक्टिवेट हो गया और उसने ऑक्सीजन की लेवल को बढ़ाना शुरू किया। बॉडी को बोला कि भाई बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, प्लीज जल्दी से ऑक्सीजन लो। तो हाइपोक्सिया हुआ, impulses going DRG की तरफ from carotid body through ninth nerve and to the DRG from aortic body through the 10th nerve। ये BCQ बहुत दफा एग्जाम में पूछा गया है कि through ninth nerve and through 10th nerve, कहां से? from carotid body 9th और aortic body 10th। इसको मैंने याद करने का सिंपल तरीका है A10, मोबाइल आता है ना A10 वाला जो मोबाइल होता है, पता नहीं कौन सा मॉडल है, A10। इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि एओर्टिक बॉडी में से 10th नर्व और बाकी जो बचेगा ऑब्वियस बात है वो कैरोटिड बॉडी होगी तो 9th नर्व, तो A10 का निमोनिक याद कर लें। सो डीआरजी में एक्साइटरी इंपल्सेस आएंगी, रिजल्ट विल इंक्रीज वेंटिलेशन। क्लियर? तो कॉन्क्लूजन ये हुआ कि सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स आर रिस्पांसिबल फॉर 80% ऑफ द वेंटिलेटरी चेंजेस टू द पीसीओ2 इन द ह्यूमंस, व्हाइल पेरिफेरल रिसेप्टर्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की सिर्फ 20% को रिस्पॉन्स करते हैं। इन शॉर्ट आई कैन से सेंट्रल आपके कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को रिस्पॉन्स करेंगे, पेरिफेरल हाइपोक्सिया को रिस्पॉन्स करेंगे। यहां तक ये क्लियर है? तो फिर मैं आगे चलूं। इज इट क्लियर टू दिस? आई होप सो यू आर गेटिंग क्लियर कंसेप्ट्स। गुड। अब यहाँ पे इसको बेसिक पढ़ी, तो इस बेसिक को प्लीज, क्योंकि आज के बाद ये बेसिक आप दोबारा कभी नहीं पढ़ोगे मुझे पता है, बिकॉज आपने बुक्स ओपन किए फॉर द एग्जाम, उसके बाद एग्जाम निकल गया कभी नहीं पढ़ोगे। तो इन बेसिक्स को क्लिनिकल से कोरिलेट करें। तो ये जो आपने रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ी है केमिकल वाली, इसको अब कोरिलेट करते हैं विथ क्लिनिकल। हम अक्सर कहते हैं सर सीओपीडी के पेशेंट को 4 लीटर से ज्यादा ऑक्सीजन नहीं देनी। आप हाउस ऑफिसर हैं, कोई भी है, आप पीजी हैं, आपका कंसल्टेंट कह रहा है भाई तुमने इसको, सीओपीडी का पेशेंट है, तुमने ऑक्सीजन 4 लीटर से ज्यादा क्यों रखी है? तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन समझें। सीओपीडी के पेशेंट में जो प्राइमरी ड्राइव होती है ब्रीदिंग की, वो शिफ्ट हो जाती है फ्रॉम CO2 टू हाइपोक्सिया। आपकी जो प्राइमरी ड्राइव है बॉडी में, मैंने पहले ही बताया कि CO2 की थोड़ी सी भी लेवल बढ़ेगी आपकी बॉडी रेस्पॉन्स करेगी। हाइपोक्सिया थोड़ा सा होगा, बॉडी उसको शायद इतना रेस्पॉन्स ना करे, पर CO2 बॉडी बहुत सेंसिटिव है। तो सीओपीडी के पेशेंट में होता क्या है कि ये जो CO2 की जो सेंसिटिविटी है ये खत्म हो जाती है, मतलब जो प्राइमरी ड्राइव है वो CO2 से शिफ्ट हो जाती है टूवर्ड्स द हाइपोक्सिया। Why? Because chronic elevation होती है CO2, जिसकी वजह से आपकी सेंसिटिविटी ड्राइव फॉर द CO2 से शिफ्ट हो जाती है टुवर्ड्स द हाइपोक्सिया। अब आपने उसको इतनी ज्यादा ऑक्सीजन दे दी कि उसका हाइपोक्सिया करेक्ट हो गया। तो उसका जब हाइपोक्सिया करेक्ट हो गया तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल बढ़ी हुई है, तो वो जो उसकी ड्राइव है हाइपर वेंटिलेट करने की वो खत्म हो जाती है। तो उसके बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो उसको बाहर नहीं निकाल पाता है। दैट्स व्हाई आप ऐसे पेशेंट में पूरा का पूरा हाइपोक्सिया करेक्ट नहीं करते हो। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि जो सीओपीडी के पेशेंट हैं उसमें मेरा जो टारगेट सेचुरेशन है वो 88 से लेके 92 तक होनी चाहिए। वाई आई डोंट से कि मेरा जो सीओपीडी का पेशेंट है, आप कभी भी नहीं सुनोगे कि यार सीओपीडी के पेशेंट में आपको कोई कंसल्टेंट या पीजी बोले कि यार इसकी सेचुरेशन जो है वो 94 या 100% रखो। नहीं, वो बोलेगा भाई इसकी सेचुरेशन 88 92 के बीच में आ रही है, सही है, करेक्ट है। तो इसका रीजन क्या है पीछे, इट शुड बी क्लियर टू यू।
यहाँ पे ये थोड़ा सा मैंने और डिटेल लिखा है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और उसको बाद में आप पढ़ सकते हैं. सो हियर इट इज द रेफरेंस फ्रॉम योर गैनॉन, केमिकल फैक्टर्स, हाइड्रोजन आयंस, ये पूरा टेबल फॉर्म में लिखा हुआ है. इसके पीछे लॉजिक क्या है आई हैव टोल्ड यू इन अ डिटेल. इफ इट इज क्लियर नाउ इट इज टाइम फॉर बीसीक्यू प्रैक्टिस. क्वेश्चन को गौर से पढ़ें एंड राइट डाउन द आंसर इन द चैट बॉक्स. प्लीज बी क्विक. जल्दी नहीं करनी, जो कंसेप्ट बताया है उसको फॉलो करना है. थोड़ा सा क्वेश्चन को दोबारा गौर से पढ़ें. आर्टीरियल पीएच को डायरेक्टली रेस्पॉन्स करेगा? आर्टीरियल पीएच क्या ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगी? आर्टीरियल पीसीओ2 को डायरेक्टली रेस्पॉन्स करेगा या इनडायरेक्टली? बेशक आर्टीरियल पीसीओ2 को रेस्पॉन्स तो करेगा, पर वो डायरेक्टली होगा इनडायरेक्टली होगा? एक्सेलेंट, वो इनडायरेक्टली होगा. तो यहाँ पे तो वो डायरेक्टली पूछना चाह रहा है. ई सीएसएफ पीसीओ2, सीएसएफ पीसीओ2 को डायरेक्टली रिस्पॉन्स करेगा? CO2 को हमेशा इनडायरेक्टली रिस्पॉन्स करेगा ना, तो इनडायरेक्टली कैसे करेगा? जी इट इज डी. तो इसका क्या होना चाहिए? डी. CSF पीएच मतलब CSF में हाइड्रोजन आइंस, और वो हाइड्रोजन आइंस को डायरेक्टली रेस्पॉन्स करेगा. क्लियर? PCO2 को बेशक रेस्पॉन्स करेगा पर इनडायरेक्टली करेगा, क्योंकि PCO2 में से इनडायरेक्टली आपके अल्टीमेटली हाइड्रोजन आइंस बनने. क्लियर? गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. गौर से पढ़ें, सुकून से पढ़ें, आंसर दें. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एलिसिटिंग अ वेंटिलेटरी रेस्पॉन्स टू द चेंजेस इन PCO2? आसान क्वेश्चन है, पर अगर आपने लेक्चर गौर से सुना है तो इंशाल्लाह इट विल बी इजी फॉर यू. इसमें तो इतनी देर नहीं लगनी चाहिए, क्या हो गया गाइस? इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. Excellent. It is A. Excellent. Okay. Next question regarding chemical control of the respiration. Which of the following statement is correct? A, B, C, D, E. एक एक स्टेटमेंट पढ़नी है और उसके पीछे लॉजिक फाइंड करना है. ये जो कंसेप्ट बताया है, अब यही क्वेश्चन आप दूसरों को जाके दिखाएं, उनके लिए टफ होगा, बट जिसको ये कंसेप्ट पता होगा उसके लिए इजी होगा. एक्सलेंट. A10 C9, मोबाइल के नाम ही याद रख लें. C9 A10. So here answer is E. So here we will end our session. Inshallah it will be continued tomorrow. कल हम बाकी का जो रेस्पिरेटरी फिजियो है उसको कंप्लीट करेंगे. आई होप सो यू हैव लर्नड समथिंग. यही हमारा मेथड होगा थ्रू आउट द सेशन. जितने भी फिजियो के लेक्चर्स, एनाटॉमी के लेक्चर्स होंगे, इसी पैटर्न पे हमारे होंगे इंशाल्लाह. और हर लेक्चर को क्लिनिकली फिजियो के स्पेशली कैसे कोरिलेट करना है वो आज आप लोगों ने देख लिया होगा. तो बेसिक को क्लिनिकल से कोरिलेट करना है एंड इंशाल्लाह वी विल डू इन अ थ्रू आउट फिजियो. सो वी विल एंड आवर सेशन हियर.
Dr. Hassan, you can, if you want to say something. Dr. Akash, can you stop the recording, please? I'm trying to stop that. Yes, yes, it is stopped. Yeah, okay. Hello, everyone. Dr. Hassan Javed here from Online Doctor. आप सबने डॉक्टर आकाश का लेक्चर सुना होगा for the MR Cam, and is there any candidate who is from the FCPS one, or are all like willing for the MR Cam one? Is there anyone who is from FCPS? Please write down in the chat box. Okay. व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस कोचिंग? देखें, ये जितने भी एग्ज़ाम्स इतने बड़े लाइक रॉयल कॉलेज के एग्ज़ाम हैं, उसको पास करने के लिए देखें, मेहनत फर्स्ट स्टेप है, वो तो आपने स्ट्रगल करनी है, अपना स्टडी करना है। बट सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अगर इनको एक ब्रीफली और अच्छे कंसेप्ट में आपको बताया जाए, किसी न किसी मेंटरशिप से आप लेक्चर ले रहे हैं और जिस तरह से डॉक्टर आकाश बड़े अच्छे तरीके से डिलीवर कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम पास करना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है। सम देर आर सम स्टूडेंट्स, आई बिलीव दैट एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, लाइक there are 20% students they can do everything themselves, but majority of the students they always need some guidance from some mentors. So best of luck everyone. I hope yes, Dr. Umair, there is a basic concept for the physiology, anatomy, pathology, like microbiology, pharmacology. Knowledge is same everywhere. डॉक्टर उमैर का क्वेश्चन था कि क्या ये जे कैट को भी कवर कर रहा है? देखिए, नॉलेज इज सेम फॉर एवरीवेयर। इवन आई हैव गिवन द MRCS, द नॉलेज इज सेम, बट द pattern of the question is a little bit different. We just have to take the basic concept from here, and we can practice according to our relevant exam questions. For MRCAM, Dr. Akash, if I'm not wrong, for the MRCAM, there is a subscription that is like MRCAM Success and Expert, right? Yes, sir. But inshallah, those candidates who will join our course, what I have planned from them, that after every session, on the very next day of the session, they will be with me and they will be practicing the questions with me. So they will not need any kind of the subscription if they will be active in the group. But you are right. These are the two subscriptions which candidates use for the BCQ practice. That is MRCAM Success and MRCAM Expert. ओके। देखिए, आपने बेसिक कंसेप्ट लेने होते हैं, और आपने जो अकॉर्डिंग टू योर एग्ज़ाम, जो भी आपका एग्ज़ाम होता है, अकॉर्डिंग टू दैट आपने MCQs की प्रैक्टिस करनी होती है। कोर्स कंसेप्ट इज सेम एवरीवेयर। आई डोंट थिंक सो कि फिजियोलॉजी माइट बी के सम ऑफ यू आपने किसी ने अच्छे से स्टडी की हो, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर आकाश ने इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को, स्पेशली फिजियोलॉजी में, इतना इजी करके इनको एक्सप्लेन कर दिया, तो हमारे बेसिक कोर कंसेप्ट क्लियर हो गए एटलीस्ट। बिकॉज वी ऑलवेज गेट कंफ्यूज इन द कैरोटिड बॉडी, aortic, same, there are many things in the exam, especially when you have like a lot of pressure, so we always mix these things. Same happened with us when we were in the like MRCS exam. So you just take a basic concept and do like preparation according to your own exam. And thank you everyone for joining. Those candidates who didn't, who are really interested, tomorrow again we will have a free session for everyone. So hopefully all of you will understand how we are going to teach this MRCAM.
And those candidates who are interested, they can contact with us and hope for the best. And Dr. Akash, what is the deadline to apply for the MR Chem Primary? It will start from that is the 17th Feb to the 24th Feb. 17 फेब टू 24 फेब जिन कैंडिडेट्स ने एमआर कैम प्राइमरी के लिए अप्लाई करना है, पोर्टल ओपन हो रहा है फॉर द मई अटेम्प्ट 17 फेब टू लाइक 24, राइट. एंड जिन कैंडिडेट्स का लाइक अभी डॉक्टर आकाश, देयर आर फ्यू कैंडिडेट्स जो सितंबर अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं, दे ऑलरेडी साइन अप. I also asked them they can start their preparation right now and they can go for the September as well. So they will have a better preparation as well. So जो candidate like मई attempt में भी देना चाहते हैं या सितंबर में भी देना चाहते हैं, they are most welcome. They will get the enough time, enough आपको proper guidance, proper lecture, each and everything. Dr. Akash and Dr. Farwa, they will be there and both of them will be teaching you. And inshallah in the group as well, very soon we will make, hopefully next tomorrow we will make a separate group for the candidates, and everyone every day they will practice their MCQs after the lecture, inshallah. Inshallah. So thank you so much everyone for joining, and let's see you everyone tomorrow, inshallah. Tomorrow, inshallah, we will complete this respiratory physio, and at the same time, we will start at 10 p.m. Link will be shared in our WhatsApp groups. Okay, then it's finished from it's all from my side, Dr. Okay, Akash, so and let's end the meeting, and thank you to everyone. Thank you everyone for joining. See you tomorrow, inshallah. See you. Achha, Allah okay, Hafiz. let me just clear the one thing, Doctor, that Umair asked. I think Dr. Umair Idris asked about is this will be helpful for the JKT exam. In the start, I already told that, as Dr. San has cleared each and everything. In the start, I said that these are the lecture series for the concept, that is the respiratory physio concept. The BCQs that I have given you, now if you know the regulation of the respiration for the in the conceptual way, I can bet you that you will be able to solve the USMLE questions. Now just is need to you go through your pattern of the exam, that what kind of questions they are asking to you, but the concept will be same. Either it is AMC exam, it is USMLE exam, it is PLAB, it is MRCS, MRCP, MRChem, FCPS, whatever the exam is, concept is totally same. The questions that you have practiced in this session for the neural regulation, do you know from where these questions are? These are from the USMLE steps Guyton BCQs की एक बुक है, उसमें से ये हैं. So see, आप लोगों ने just within a minute आपने उसका आंसर दे दिया, जबकि वो इतने आसान क्वेश्चन है ही नहीं. So this is the beauty of the concept. So inshallah we will deliver all our lectures in this way. So inshallah, see you tomorrow. Tomorrow we will complete this respiratory. So we will end our session here and see you tomorrow. Thank you very much. Thank you.